हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 6.2 के जो है क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज द ट्रायंगल। ओके, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। इसमें आप जो है थ्योरम पढ़े, क्या थ्योरम पढ़े, थेयस थ्योरम पढ़े, कन्वर्स ऑफ द थेयस थ्योरम, तो उसके अनुसार हमको सॉल्व करना है। थेयस थ्योरम क्या था? इन ए ट्रायंगल वन लाइन इज पैरेलल टू द one line is parallel to the one sides of the triangle. It bisect the two side, bisect बोल तो दो साइड को कट हो रही. Then we get the two units here. Okay, then its ratio will be equal to the another sides. Whatever be the ratio is formed here, its ratio will be equal or same to the another side. तो दो रेशियो क्या होते, सेम होते when the two lines are parallel. So what we have to find out in the triangle ABC? So this one is given, the value of this one and this one is given. So EC we have to find out in the question number 1. What is the question number 1? In the figure first and the second means it means another question is there. So first one is here. DE is parallel to the BC. So ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है. So find EC, हमको EC find out करना है. So the first one का solution. What is given here? Given DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. So by the Thales theorem, Thales theorem के अनुसार हमको लेना है फर्स्ट AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC बाय द थेल्स थ्योरम. और हम इसको क्या बोलते हैं, BPT बोलते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स. Now we put the values. The first one is AD 1.5 divided by DB, that is the 3 centimeter. Then A is the 1 centimeter. EC is not here, so EC is as it is. Now cross multiply. ये इधर मल्टीप्लाई होके आएगा EC, then ये पूरा जो है इधर मल्टीप्लाई होके आता 1 into रेसिप्रोकल होके 3 divided by 1.5. Now 3 ones, this 1.5 ones and this is the 2s. So EC is equal to 2 into 1 is 2 centimeter. सेम हमको लेना है, यहाँ पे इसका रेशियो लेना है when the lines are parallel. So its answer is here, EC is the 2 centimeter. इस प्रकार से हमको करना है by the Thales theorem. अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड यहाँ दिया, सेम अभी जो यूज किए ना, सेम इसी तरह से हम थेल्स थ्योरम लेके सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर व्हाट इज गिवन हियर, सेम गिवन DE इज पैरेलल टू BC, ये तो दिया. सो बाय यूजिंग द Thales, by using the Thales theorem, इसका रेशियो डालना है हम. सो AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. AD नहीं है यहाँ पे, AD is as it is, divided by DB 7.2 is equal to AE is 1.8 divided by 5.4. Okay, put the values. Next cross multiply, ये इधर आएगा. AD is equal to 1.8 into 7.2 divided by 5.4. 18 ones are 1.8 मीन्स सपोज हम 18 लिए तो 18 वन जा 18 कितना हो जाएगा 3 जा. नेक्स्ट
3 1 जा 3 2 जा 6, remaining 1.34 जा. So its answer is here AD is equal to 2.4 सेंटीमीटर. सेम हमको फर्स्ट क्या होना चाहिए, थेल्स थ्योरम लेना चाहिए, उसके बाद इसके रेशियोज लेना है हमको. AD divided by DB is equal to AE divided by AC. Now we put the values of these things. Okay, that is already given. And after simplification we get the answer AD is equal to 2.4 centimeters. So this centimeter also we have to write down. Okay, that is also very important. सो नाउ बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के सब क्वेश्चंस यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो इन दिस वन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर, द इन द सेकंड वन फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन. सो व्हाट इज द मेन सेकंड क्वेश्चंस? E and F are the points on the sides of PQ and PR respectively of a triangle PQR. It means मैं यहाँ रफली एक फिगर ड्रॉ करूंगा. PQR is a triangle. PQR is a triangle in which E and F are points on the side of PQ and PR. तो इसके ऊपर एक पॉइंट है, एक है E, अनदर वन इज F. ओके, इसको ज्वाइन करेंगे. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR. ये दोनों पैरेलल है या नहीं है हमको पता करना है. कब पैरेलल होते? व्हेन दीस रेशियोज आर सेम. अगर दोनों का रेशियो सेम आया तब जो है पैरेलल होते हैं. द फर्स्ट वन इज P इज द 3.9, सेकंड वन इज EQ इज द 3 सेंटीमीटर. Next PF is 3.6 centimeter. Next we have to find out FR. FR भी है, FR है, सॉरी FR है. हमको यहाँ पे सिर्फ रेशियो जो है चेक करना है, इसका रेशियो इसका रेशियो सेम है या नहीं हमको चेक करना है. सो नाउ गिवन क्या दिया यहाँ पे? गिवन सेम एज इट इज लिखना है. PE is equal to 3.9 centimeter, EQ is equal to 3 centimeter, and PF is equal to 3.6 centimeter, और एक है and FR is equal to 2.4 centimeter. एग्जाम में ऐसे लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, गिवन लिखना है. नहीं, अगर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते तो हाफ मार्क्स चले जाते. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन. थेल्स थ्योरम के अनुसार हम जो रेशियो डालते हैं PE डिवाइडेड बाय EQ. PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू द P वैल्यू इज 3.9 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, सो दैट इज 1.3. इसका रेशियो आ गया 1.3. सेकेंड वन इज PF डिवाइडेड बाय FR. PF डिवाइडेड बाय FR. सो PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4. अब हम डेसिमल पॉइंट अगर सपोज इसको हटा देंगे तो कैसा होगा? 3.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10. सो इट विल गेट 36 डिवाइडेड बाय 24. 12 से कट होता. सो इट इज 12 2 जा 12 3 जा. इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स 1.5. अब देखते हैं इन दोनों का वैल्यू कितना आ रहा. 1.3 एंड 1.5 बोथ आर नॉट सेम. व्हेन दीज रेशियोज आर नॉट सेम मीन्स दीज टू आर नॉट पैरेलल. सो देयरफॉर PE डिवाइडेड बाय EQ, दिस वन, is not equal to PF divided by FR. Hence EF is not parallel to QR. By converse of थेल्स थ्योरम. अगर इसके अनुसार हम देखेंगे दोनों पैरेलल नहीं होते. अब जो है सेकंड वन देखते हैं. सेकंड वन सेम ऐसे ही सॉल्व करना है. यहाँ पे वैल्यू दिया, फिगर तो सेम ऐसे ही आएगा. रफली अगर हम ड्रॉ करें तो हमको इजीली समझ में आता है. PE
4 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर, RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। नाउ given means same, PE is equal to 4 centimeter, QE is equal to 4.5 centimeter, PF is equal to 8 centimeter and RF is equal to 9 centimeter. Now in triangle PQR, सो PE डिवाइडेड बाय EQ, अभी जैसे किया था ना ऐसे ही, सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4.5। नेक्स्ट अगर सपोज हमको डेसिमल पॉइंट हटाना है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10, दैट बिकम्स द 40 डिवाइडेड बाय 45। ओके, सो हम इसको जो है 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 8 जा 4 9 जा, सो दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 9, रहने दो। नेक्स्ट इज PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9, सेम आ रहा 8 बाय 9 8 बाय 9 है ना। सो देयरफॉर PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR, both are equal. Hence EF is parallel to QR according to converse of Thales थ्योरम। रेशियो जब सेम आते इसको सॉल्व किए 8 बाय 9 8 बाय 9 आया, देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इसको सॉल्व किए 8 बाय 9 आया, इसको सॉल्व किए 8 बाय 9 आया, इट मीन्स दीज टू आर द पैरेलल लाइन्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यहाँ पे लिखा, इसका वैल्यू है PQ इज इक्वल टू 1.28, PR इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे एक्चुअली PQ एक दिया, PR एक दिया, यहाँ पे इसमें पार्ट्स में दिया था ना। अब नेक्स्ट क्या दिया, PQ एंड PE, PR एंड PF, हम ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट PE इज 0.18 एंड PF कितना है 0.36। okay, so first we have to write down here the given value, given compulsory एग्जाम में ही लिखना है। so PQ is equal to 1.28 सेंटीमीटर, PR is equal to 2.56 सेंटीमीटर, PE is equal to 0.18 सेंटीमीटर and PF is equal to 0.36 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम क्या करना है, दो ट्रायंगल आते हैं इसमें, PEF एंड PQR, है ना। सो इन ट्रायंगल PEF एंड ट्रायंगल PQR रेशियो सेम आता नहीं आता, ये चेक करना है। सो फर्स्ट छोटा वाला ट्रायंगल है तो इसका साइड हम लेंगे PE डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू, PE का वैल्यू 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28। नाउ 0.18 डिवाइडेड बाय 1.28, वी जस्ट मल्टीप्लाई द 100 on both side. Why? Because there are two decimal part here, so remove this decimal point, that's why we should multiply the 2 zeros number, क्योंकि ये इसको हटाना है पॉइंट को। तो हम क्या करते हैं, कितने यहाँ पे नंबर्स हैं उतने जीरो वाले से हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इट बिकम्स 18 डिवाइडेड बाय 128, 2 9 जा 2 6 जा 2 4 जा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 64। रहने दो, स्टॉप। नेक्स्ट और एक क्या लेंगे हम, ये साइड में PF डिवाइडेड बाय PR
PF डिवाइडेड बाय PR। PF कितना है 0.36 डिवाइडेड बाय 2.56, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 0.36 इंटू 100, नेक्स्ट 2.56 इंटू 100, डायरेक्ट भी लिख सकते, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 256। ओके, नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, एक बच रहा, 4 4 जा कितना आएगा, ये भी 9 डिवाइडेड बाय 64 आ रहा, 9 बाय 64, 9 बाय 64 आ रहा ना, सेम। सो क्या लिख सकते हैं हम, सो देयरफॉर PE डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय PR। So therefore EF is parallel to QR according to converse of Thales थ्योरम। बस, अगर ये रेशो का वैल्यू जो भी हम सिंप्लीफाई करके आ रहे, फाइनल अगर दोनों अगर इक्वल आ रहे, तब ये लाइन क्या हो जाते, पैरेलल हो जाते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इन ए फिगर इफ LM is parallel to BC and LN is parallel to CD, prove that AM divided by AB divided by AB is equal to the AN divided by AD। ये हमको प्रूफ करना है। सो गिवन इन ए ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ABC ट्रायंगल, ABC क्या दिया इसमें, ABC इसमें दिया LM is parallel to CB, LM is parallel to CB, ये दिया। So by the Thales theorem we know that अब इसका रेशो हमको लेना है। यहां पे कैसा है रेशो, AM डिवाइडेड बाय AB है, तो आपको हमको भी ऐसे ही लेना है। सो फर्स्ट हम लेंगे AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AM बाय AB, ये ट्रायंगल ले रहे ऊपर वाला, इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय AC, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया। अब नीचे का ट्रायंगल लेना है। सो यहां पे सेम, गिवन इन ए ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADC, इसमें क्या दिया, ADC में LN इज पैरेलल टू CD, ये और ये पैरेलल लेवल के दिया। ओके, सो अब इसको करेंगे बाय द Thales थ्योरम, वी नो दैट, कैसे आएगा थेल्स थ्योरम के अनुसार, कैसे आएगा, सेम यहां पे जो हमने रेशो लिए थे सेम ऐसे ही लेंगे। तो रेशो कैसे आएंगे, यहां पे फर्स्ट हमने यहां पे AM लिया था, अब यहां पे AN लेंगे, AN डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय AC। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। AN divided by AD is equal to AL divided by AC. So this is the equation number 2. Now when we are comparing the equation 1 and 2, what we observed, AL by AC both are same. From equation 1 and 2 we get from the equation 1 and 2 we get
क्या आएगा, ये दोनों सेम आएगा, राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स, सो वी कैन राइट इजीली AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD, hence proved, hence proved। तो इस प्रकार से आएगा। Now the question number 4. Here the question number 4 I have written and the figure is also drawn, that is given in the textbook also. Okay. So what is the question number 4? In the figure DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. It means these two are parallel and these two are parallel. Prove that BF divided by FE is equal to BE divided by EC. हमको ये प्रूफ करना है। ओके, सो फर्स्ट इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC लेंगे। इन द ट्राइंगल ABC क्या दिया यहाँ पे, DE इज पैरेलल टू AC, बड़े वाले ट्राइंगल में DE इज पैरेलल टू AC। नाउ बाय यूजिंग the Thales theorem, अब इसका रेशियो डालेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। ओके, बड़े वाले ट्रायंगल में ये और ये लिए, फिर ये और ये लिए। ओके, सेम, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ गोइंग टू द सेकंड वन, इन ट्रायंगल, सो दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये दिया ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमको, ये वाला ABE। इन ट्रायंगल ABE DF is parallel to AE, कहाँ है DF, ABE DF is parallel to AE। okay, these two lines are parallel, so that is also given, है ना। हमको ये ट्राइंगल लेना है, so इसका रेशियो हम डालेंगे। फर्स्ट BD डिवाइडेड बाय DA is equal to BF divided by FE is equal to BF divided by FE. This is the equation number 2. Now comparing the equation 1 and 2, or from equation 1 and 2 we get, अगर हम इसको कंपेयर करके देखेंगे, सो दीज टू वैल्यूज आर सेम, BD by DA है ना। सो दीज टू आर सेम मीन्स वी कैन राइट डाउन दिस वन, ये लिख सकते हम, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले ये है, तो हम ये लिखेंगे BF डिवाइडेड बाय FE, दिस वन इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC, दिस वन and this one from the equation 1 and 2। तो हमको ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट ट्राइंगल ABC लेना है, इसमें ये दो लाइन पैरेलल होते हैं। सेकंड ट्राइंगल ABE लेना है, इन दिस वन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। राइट ऑन इट्स रेशियो एंड टेक द इक्वेशन 1 and 2 and compare these two equations, equation 1 and 2, we get both are from the left hand side, both are the values are same, so equate these two, we get the final answer। okay, ऐसे आ जाएगा, hence proved। इस प्रकार से हमको करना है। तो इसको आएगा, मेन चीज क्या है, हमको थेल्स थ्योरम पता रहना है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम्स, इस प्रकार से हम कर सकते हैं।